کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران 7 بار زلزلہ آ چکا ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر کہتے ہیں زلزلہ لانڈی فالٹ ریجن میں آ رہا ہے۔ کراچی کی فالٹ لائن تھانہ بولا خان کے قریب بھی ہے، کیرتھر کے قریب بھی مین باؤنڈری لائن ہے۔ اس فالٹ لائن پر آج تک بڑا زلزلہ نہیں آیا۔ فالٹ لائن معمول پر آنے میں چند دن لگ سکتے ہیں۔ ایک لانڈی فالٹ ہے، اس میں کل سے جو ہے وہ ارتھکویک فریکوینٹلی آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ اس میگنیچیوڈ میں کوئی بھی ابھی تک کوئی کیجولٹیز نہیں ہوئی ہے، نہ کولیپس کی رپورٹ آئی ہے اب تک۔ لانڈی ہے، ملیر ہے، تھانہ بلے خان ہے، پھر اس طرف کیرتھر ہے۔ کہ کراچی میں جو فالٹ یا ایکٹیو اسٹوری ہے، جو ارتھکویک کی تاریخ ہے، اس میں اتنا بڑا ارتھکویک کبھی بھی نہیں آیا ہے۔ امید ہے یہ 1 یا 2 دن میں سیٹل ہو جائے گا، کیونکہ یہ بڑا کوئی ایونٹ نہیں تھا۔ ان کو تیاری کرنی چاہیے، احتیاط ضروری ہے ہر چیز۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کل سمریال کی عوام کی صرف رائے پر نہیں، ان کی عزت نفس اور وجود پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ہم اس ملک میں جمہوریت لائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اسی لیے جیل میں ہے، وہ اقتدار کی نہیں اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کراچی سے اپنے پیاروں میں عید کی خوشیاں منانے پردیسی روانہ ہونے لگے۔ کراچی کینٹ اسٹیشن سے پہلی عید اسپیشل ٹرین لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ مزید بتائیں گے ہماری نمائندہ ارشد خان۔ میں اس وقت کینٹ اسٹیشن پہ موجود ہوں۔ پاکستان ریلوے نے پردیسیوں کی آسانی کے لیے 5 جو ٹرینیں ہیں مختلف شہروں کے لیے روانہ کی ہے، جن میں سے آج پہلی عید اسپیشل ٹرین کراچی سے براستہ ملتان لاہور کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ بہت سارے مسافروں سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے عید پہ جانے کے لیے مزہ آتا ہے، اپنوں کو سیٹیں مل جاتی ہے۔ تو ہمیں سیٹ نہیں مل رہی تھی، لیکن جب ہمیں عید اسپیشل ٹرین کا پتہ چلا تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، ہمیں سیٹ بھی جلدی سے مل گئی ہے۔ اپنوں میں جائیں گے، عید منائیں گے، خوشیاں کریں گے۔ بالکل۔ اچھا، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے بھی مزہ آئے گا بہت زیادہ وہاں جا کر، اور انجوائے کریں گے ہم لوگ، اچھی بات ہے۔ بالکل، یہاں آپ نے شہریوں سے بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو خوشی اپنوں میں عید منانے کی ہے وہ دوسرے شہر میں نہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اسی طرح جو عید اسپیشل ٹرینز ہیں وہ چلتی رہنی چاہیے۔ لاہور کی ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں وزیراعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت۔ وزیراعظم بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل کے سوال پر شہباز شریف نے بتایا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا جواب دعویٰ بالکل بھی نہیں پڑھا۔ دعوے کی تائید میں کوئی زبانی بیان ریکارڈ نہیں کرانا چاہتا۔ یاد نہیں بیان حلفی داخل کرنے سے قبل عدالت سے اجازت لی تھی۔ نہیں بتا سکتا کہ عدالت نے بیان حلفی داخل کرنے کے لیے کوئی حکم دیا تھا کہ نہیں۔ اس موقع پر وزیراعظم کے وکیل نے اعتراض کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل غیر ضروری سوال پوچھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ممکنہ طور پر G7 سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ مودی کو ابھی تک کینیڈا نے اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت نہیں دی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اگر دعوت دی بھی گئی تو مودی اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ کینیڈا میں G7 سمٹ 15 سے 17 جون تک ہوگی۔ 6 سال میں پہلی بار ہوگا جب مودی G7 اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ سکھ تنظیموں کے کینیڈا سے مودی کو G7 اجلاس میں مدعو نہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ واٹاوا اور نئی دہلی کے تعلقات گزشتہ سال وینکوور میں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد سے کشیدہ ہیں۔ دارالحمان سے لڑکی کے لاپتہ ہونے کے مقدمے کی پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ عثمان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ عثمان، کیا احوال رہا آج سماعت میں؟ جی بالکل، یہ پشاور ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے جو حیات آباد عدالت میں پیش ہوئے ان سے چیف جسٹس نے سوال کیا کہ حیات آباد جو ہے سیکیورٹی کی حال ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہاں پر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امن کا صورتحال جو ہے اس کو کنٹرول کر لے، لیکن ان کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے، جس پر چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ کہاں سے جو ہے یہ لوگ آتے ہیں، جس پر جو اس چوتے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ شاکر کا علاقہ جو ہے وہ حیات آباد کے ساتھ ہے اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ دیوار جو ہے اس کو توڑتے ہیں اور پھر حیات آباد میں آتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ان سے رپورٹ طلب کر دیا کہ آپ سیکیورٹی کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لیں، کیونکہ حیات آباد جو ہے وہ پوش علاقہ ہے، 10 لاکھ آبادی ہے وہاں پر، لیکن وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال ہے۔ ہی عدالت نے جو حیات آباد کے وکیل سے ان کو بھی کہا کہ آپ نے ابھی تک اس کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا، کیونکہ حیات آباد جو ہے وہ ایک پوش علاقہ ہے، جس پر عدالت نے جو اس رجوع سے ان سے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کر لیا ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ حیات آباد کی سیکیورٹی کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ۔ اور اب بات کریں گے مودی سرکار کی سرپرستی میں آسام میں ماورائے عدالت قتل کا خطرناک رجحان۔ ہندوتوا واچ کے مطابق بھارتی ریاست آسام میں مسلمانوں کا ماورائے عدالت قتل انتہا پسند ہندوتوا سوچ کا عکاس ہے۔ مودی کی مسلم دشمن پالیسیز کو نافذ کرنے میں آسام پولیس اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انتہا پسند بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد آسام میں اقلیتوں کو ماورائے قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔
मई से दिसंबर 2021 के दौरान भारतीय पुलिस ने 31 मावरा अदालत कत्ल किए। पुलिस के मुताबिक मई से नवंबर के दौरान 28 अफराद फायरिंग से हलाक हुए। दिसंबर में मजीद 3 अफराद की मौत वाक़ हुई। पुलिस के हाथों मरने वालों में 30 शनाख्तशुदा अफराद में 14 मुसलमान और 10 कबायली बरादरियों से थे। 55 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें कम से कम 30 मुसलमान हैं। वज़ीर आला ने आसाम पुलिस के मावरा अदालत कत्ल का हमेशा दिफा किया। भारत पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त खा चुका। आलमी माहिरीन भी भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। फ्रांसीसी माहिर सियासत क्रिस्टोफ जाफ्रेलो कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। War is victory for Pakistan because the equipment came from China and did well. It was probably for the first time that we see Chinese jets that effective. Pakistan was well equipped, well supported by China. It has been, to my mind, underreported in the Indian media, and that is a long-term impact that will necessarily affect India's domestic politics. Imagination of Pakistan that we see in India needs to be taken care of. This is a country that has nuclear weapons, that is supported by China. So if I say that, it's because there is one dimension that we have not touched upon yet that worries me a lot, and that is the Indus Treaty, use water as a weapon. That is very dangerous. और अब आपको बताएं, सिंध असेंबली की लोड शेडिंग से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास जारी है। नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी से मजीद जानते हैं। संजय, बताइएगा, इजलास जारी है? हाँ जी बिल्कुल। सिंध असेंबली में इलेक्ट्रिक के जो कराची में लोड शेडिंग के 27 शहरियों के हवाले से उन्होंने नोटिस दिया था और सिंध असेंबली ने एक खसूसी कमेटी तश्कील दी कि खास तौर पर कराची समेत सिंध भर में जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं उनके सीईओ को आज तलब किया गया था। इजलास जब शुरू हुआ तो पहले के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अलवी नहीं पहुंचे थे, जिस पर इजलास से गर्मा गर्मी हुई और उनके जो हकाम पहुंचे थे उन्हें ये मैसेज दिया गया कि आज अगर वो नहीं आते तो उन्हें शोकाज नोटिस दिया जाएगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद मोनिस अलवी इजलास में पहुंच गए। इस वक्त इजलास में स्पीकर सिंध असेंबली अवैध कादर, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत दीगर लोग शरीक हैं और इजलास में शामिल अरकान सिंध असेंबली जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों के सीईओ हैं उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि किस कानून के तहत आप लोड शेडिंग करते हैं, आपके पास तरीकेकार क्या है। अगर कोई एक शख्स या कुछ लोग किसी एरिया में बिल नहीं देते, आप पूरे इलाकों की बिजली क्यों बंद कर देते हैं। और कई इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसका इन हकाम के पास कोई जवाब नहीं है। सिंध असेंबली के जो अरकान असेंबली है वो आज काफी गम और गुस्से में है और उनका जो गुस्सा है वो के इलेक्ट्रिक के सीईओ हो या एस्को सेस्को के सीईओ हो उन पर दिखाई दे रहा है और उन पर वो चढ़ाई कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि हमें बताएं सही किस कानून के तहत आप लोड शेडिंग करते हैं। न सिर्फ 2 घंटे की बात नहीं है, कुछ इलाकों में 15 घंटे, कुछ इलाकों में 18 घंटे। आपके पास कोई कानून नहीं है, किसके माध्यम से आपका मतलब कुछ अरकान असेंबली ने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो बिजली सप्लाई करने वाले कंपनीज हैं उनका दिमाग खराब है। वो अवाम के साथ जो उन्होंने सलूक रखा हुआ है, जो उनकी मुश्किलात है वो खत्म करने का नाम नहीं मिली। आप अरकान असेंबली को भी कहा तक नहीं डालते। ये तो कमेटी जो है उसमें पहले आपको बुलाया गया, आप पहले शरीक नहीं हुए, जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि सिंध असेंबली की जो कायमा कमेटी है खसूसी के इलेक्ट्रिक के मुतालिक उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि किस कानून के तहत कराची की शहरियों की जिंदगी जो अजीरन की गई है, किस कानून के तहत उन्हें इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं, किस कानून के तहत इतनी जो है ज्यादा घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया संजय तफसीलात के लिए। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान वर्चुअल बजट मुज़ाकरात। आईएमएफ ने पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा कर दिया है। शुएब निजामी से मजीद जानते हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी, मुज़ाकरात में आईएमएफ ने मुतालबा किया कि हुकूमत पाकिस्तान जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर कार्बन लेवी आयद करे और इससे जो है तकरीबन सालाना 25 अरब रुपए हासिल किए जाएं। अगर हुकूमत कार्बन लेवी आयद नहीं करती तो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उससे जो है 25 अरब रुपए हासिल करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उनकी के लिए खर्च की जाए, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रक्शे, इनकी हौसला अफजाई की जाए। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है और चार्जिंग स्टेशन है वो कायम किए जाएं। साथ साथ ये मुतालबा भी किया गया है कि 800 सीसी 850 सीसी की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर पेट्रोल और डीजल गाड़ी
गाड़ियों के ऊपर, जैसे जायद की जो सीसी गाड़ियां हैं उनके पेट्रोल और डीजल इंजन के ऊपर जो है वो एक कार्बन टैक्स लगाया जाए, जिससे जो रकम हासिल हो वो भी जो है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हौसला अफजाई के लिए खर्च की जाए। 850 सीसी की गाड़ियों के ऊपर जो सेल टैक्स की शरह 12.5% है उसको खत्म किया जाए, उसको 18% जो है सेल टैक्स आयद किया जाए। इसके साथ साथ जो है ये मुतालबा भी किया गया अंदर 5 साल के अंदर पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों की शरह है उसको 50% तक पहुंचाया जाए, और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनकी शरह जो है वो 30% तक पहुंचाई जाए। जी बहुत शुक्रिया शुएब। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एफबीआर के उमूर के हवाले से जायज़ा इजलास, तमाम शुबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। तफसीलात जानते हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अज़हर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अज़हर फारूक। जी, इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने एफबीआर को हदायत जारी की है कि इक़दाम और इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता जो कंपनी है उनकी खिदमात हासिल की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि मार्का हक की तारीख साथ फतह के बाद मुल्की इदारों में पायदार इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान को एक मुस्तहकम आलमी मैशत बनाने की जदोजहद में फतहयाब होने के लिए हुकूमत पाकिस्तान पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं, जबकि मुल्की इदारों से करप्शन के इंसदाद और शफाफियत की अदम मौजूदगी जैसी दीगर खामियों को दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान तमाम इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हालिया मुस्बत मुआशी इशारिया हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम जो है उसकी हालिया जो कारकर्दगी है उस पर भी इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की ये जदोजहद जो है उसमें हम कामयाब होंगे। इजलास को ये बताया गया है कि कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम के निफाज से महसूलात में मजबूती तौर पर इजाफा हुआ है और कस्टम्स क्लियरेंस के दौरानिये में भी खातिर खा कमी आई है। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड में इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है, इस हवाले से भी इजलास को बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि आम सार्फिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जो है वो जल्द नाफिज किया जाएगा, ताकि तमाम सार्फिन को जो है वो टैक्स रिटर्न के लिए जमा कराने के लिए सहूलत जो है वो फराहम की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़हर फारूक। कराची से अपने प्यारों में ईद की खुशियां मनाने परदेसी रवाना होने लगे। कराची कैंट स्टेशन से पहली ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर के लिए रवाना होगी। मजीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा इशरत खान। मैं इस वक्त कैंट स्टेशन पे मौजूद हूँ और पाकिस्तान रेलवे ने परदेसियों की आसानी के लिए 5 जो ट्रेनें हैं मुख्तलिफ शहरों के लिए रवाना की है, जिनमें से आज पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से बरास्ता मुल्तान लाहौर के लिए रवाना हो चुकी है। बहुत सारे मुसाफिरों से मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है ईद पे जाने के लिए मजा आता है, अपनों को सीटें मिल जाती है। तो हमें सीट नहीं मिल रही थी, लेकिन हमने जब हमें इस स्पेशल ट्रेन का पता चला तो हमें बहुत खुशी हुई है, हमें सीट भी जल्दी से मिल गई है। अपनों में जाएंगे, ईद मनाएंगे, खुशियाँ करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी मजा आएगा बहुत ज्यादा वहाँ जाकर और एंजॉय करेंगे हम लोग, अच्छी बात है। बिल्कुल, यहाँ आपने शहरियों से बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो खुशी अपनों में ईद मनाने की है वो दूसरे शहर में नहीं। इनका यही कहना है कि इसी तरह जो ईद स्पेशल ट्रेन है वो चलती रहनी चाहिए। नौशहरों पैरोज की मवेशी मंडी में खूबसूरत और कदावर बैल सुल्तान ने धूम मचा दी। व्यापारी की 20 लाख मांग, लेकिन ताहाल कोई खरीदार नहीं मिल सका। मुनव्वर हुसैन से मजीद जानते हैं। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है जिला नौशहर फिरोज की सबसे बड़ी मवेशी मंडी हलानी में। करीबी अजला में ये मवेशी मंडी सबसे बड़ी करार पाती है। यहाँ पर जो व्यापारी हजरात हैं वो अपने जानवरों को फरोख्त करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो खरीदार है वो उसके मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको दिखाते चले कि मेरे अकब में दिखाई देने वाला जो जानवर है वो इंतहाई कदावर और इस पे मवेशी मंडी का सबसे महंगा तरीन जानवर है। मालिक का कहना है कि इसका नाम मैंने सुल्तान रखा हुआ है और इसकी जो कीमत है वो 20 लाख मुकर्रर की गई है। इसका कहना है कि मैंने इस जानवर पर बचपन से लेकर अब तक बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसे बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया है। इसके मालिक से बात करते हैं कि उसका क्या कहना है। जी, बहुत मेहनत की है यार, हमने बहुत मेहनत की है। हम लग रहे नहीं है पैसे, हाजी नहीं लगा रहे, 12-13 लाख लगा रहे हैं। मेहनत बहुत हुआ है, इसमें पैसे अच्छे नहीं लगा रहे हैं हाजी। जो व्यापारी है उसका यही कहना है कि जो हमारा दाम है, जो रेट रखा गया 20 लाख रुपए, वो यहाँ जो खरीदार है वो नहीं दे पा रहे और अब तक जिसका रेट लग रहा है वो 12-13 लाख तक लग चुका है, लेकिन हम फरोख्त नहीं कर रहे। इसका यही कहना है कि जब तक इसका जो मुनासिब दाम है 20 लाख रुपए वो नहीं मिलेंगे तो हम इसे फरोख्त नहीं करेंगे। जी, लाहौर की एडिशनल सेशन जज की अदालत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म बजरिए वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। वकील के सवाल पर शहबाज शरीफ ने बताया कि उन्होंने बानी पीटीआई का जवाब दावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। दावे की तायद में कोई ज़बानी बयान रिकॉर्ड नहीं कराना चाहता। याद नहीं बयान हल्फी दाखिल करने से कबल अदालत से इजाजत ली थी। नहीं बता सकता कि अदालत ने बयान हल्फी दाखिल करने के लिए कोई
हुक्म दिया था कि नहीं? इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने एतराज किया कि बानी पीटीआई के वकील गैर ज़रूरी सवाल पूछ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मोदी को अभी तक कनाडा ने इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत नहीं दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर दावत दी भी गई तो मोदी इजलास में शरीक नहीं होंगे। कनाडा में G7 समिट 15 से 17 जून तक होगी। 6 साल में पहली बार होगा जब मोदी G7 इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। सिख तंजीमों के कनाडा से मोदी को G7 इजलास में मदऊ न करने का मुतालबा किया था। अवाटावा और नई दिल्ली के ताल्लुकात गुज़श्ता साल वैनकूवर में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद से कशीदा हैं। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारतीय क़यादत के हालिया बयानात बशमूल बिहार में दिए गए रिमार्क्स निहायत तशवीशनाक ज़हनियत की अक्कास हैं। भारतीय क़यादत की ज़हनियत अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देती है। पाकिस्तान को खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब जाहिर करने की कोई भी कोशिश हकीकत से कोसों दूर है। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत के जारहाना रवैये और पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों की हिमायत से बखूबी आगाह है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बदस्तूर खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ऐसा हल चाहता है जो सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। भारत धमकियों, गलत बयानिए या ताकत से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल बजट मुज़ाकरात। IMF ने पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि अगर कार्बन लेवी आयद नहीं करनी तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से सालाना 25 अरब वसूल करके इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी दी जाए। बजट में 850 सीसी और जायद की गाड़ियों के इंजन पर भी कार्बन लेवी लगाई जाए। IMF का मुतालबा है हुकूमत आइंदा 5 सालों में इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ी खरीदने में सहूलत दे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शरह बढ़ाकर 30% तक लाए। पेट्रोल और डीजल इंजन की मकामी और इम्पोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स की रियायत खत्म की जाए, जबकि आइंदा बजट में 850 सीसी और जायद की पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर सेल्स टैक्स भी 18% तक किया जाए। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर फायरिंग से 18 साल का यूसुफ जाँ बहक हो गया है। पुलिस का बताना है जाँ बहक नौजवान दुकान चलाता था। अफजल खान से मजीद जानेंगे। अफजल, बताएगा इस बारे में। देखिए, ये नॉर्दर्न बाईपास में उस्मानिया सोसाइटी के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ है, जिसकी शनाख्त 18 साल यूसुफ के नाम से हुई है, जो वहां पर दुकान चलाता था। और इस वाकये के बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है, लेकिन 3 थानों की ये हदूद है, जिसकी वजह से पुलिस को हदूद का तनाज़े के अंदर उलझ गई है। और पुलिस के इस रवैये की वजह से जो वर्षा हैं वो बगैर कानूनी कार्रवाई के लाश लेकर घर जा चुके हैं। और वर्षा का कहना है कि वाकया डकैती मुजाहिमत पर पेश आया, ताहम पुलिस का कहना है कि वो इस वाकये के ऊपर मजीद जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। ठीक है अफजल, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारतीय क़यादत के हालिया बयानात बशमूल बिहार में दिए गए रिमार्क्स निहायत तशवीशनाक ज़हनियत की अक्कास हैं। भारतीय क़यादत की ज़हनियत अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देती है। पाकिस्तान को खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब जाहिर करने की कोई भी कोशिश हकीकत से कोसों दूर है। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत के जारहाना रवैये और पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों की हिमायत से बखूबी आगाह है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बदस्तूर खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ऐसा हल चाहता है जो सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। भारत धमकियों, गलत बयानिए या ताकत से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल बजट मुज़ाकरात। IMF ने पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि अगर कार्बन लेवी आयद नहीं करनी तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से सालाना 25 अरब वसूल करके इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी दी जाए। बजट में 850 सीसी और जायद की गाड़ियों के इंजन पर भी कार्बन लेवी लगाई जाए। IMF का मुतालबा है हुकूमत आइंदा 5 सालों में इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ी खरीदने में सहूलत दे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शरह बढ़ाकर 30% तक लाए। पेट्रोल और डीजल इंजन की मकामी और इम्पोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स की रियायत खत्म की जाए, जबकि आइंदा बजट में 850 सीसी और जायद की पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर सेल्स टैक्स भी 18% तक किया जाए। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर फायरिंग से 18 साल का यूसुफ जाँ बहक हो गया है। पुलिस का बताना है जाँ बहक नौजवान दुकान चलाता था। अफजल खान से मजीद जानेंगे। अफजल, बताएगा इस बारे में।
देखिए, ये नॉर्दर्न बाईपास में उस्मानिया सोसाइटी के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँबार हुआ है, जिसकी शनाख्त 18 साल यूसुफ के नाम से हुई है, जो वहां पर दुकान चलाता था। और इस वाकये के बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है, लेकिन 3 थानों की ये हदूद है, जिसकी वजह से पुलिस को हदूद का तनाज़े के अंदर उलझ गई है। और पुलिस के इस रवैये की वजह से जो वर्षा हैं वो बगैर कानूनी कार्रवाई के लाश लेकर घर जा चुके हैं। और वर्षा का कहना है कि वाकया डकैती मुजाहिमत पर पेश आया, ताहम पुलिस का कहना है कि वो इस वाकये के ऊपर मजीद जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। ठीक है अफसल, बहुत शुक्रिया आपका। नौशहरों फेरोज की मवेशी मंडी में खूबसूरत और कदावर बैल सुल्तान ने धूम मचा दी। व्यापारी की 20 लाख मांग, लेकिन ताहाल कोई खरीदार नहीं मिल सका। मुनव्वर हुसैन से मजीद जानते हैं। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है जिला नौशहरों फिरोज की सबसे बड़ी मवेशी मंडी हलानी में। करीबी अजला में ये मवेशी मंडी सबसे बड़ी करार पाती है। यहाँ पर जो व्यापारी हजरात हैं वो अपने जानवरों को फरोख्त करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो खरीदार है वो उसके मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको दिखाते चले कि मेरे अखम में दिखाई देने वाला जो जानवर है वो इंतहाई कदावर और इस मवेशी मंडी का सबसे महंगा तरीन जानवर है। मालिक का कहना है कि इसका नाम मैंने सुल्तान रखा हुआ है और इसकी जो कीमत है वो 20 लाख मुकर्रर की गई है। इसका कहना है कि मैंने इस जानवर पर बचपन से लेकर अब तक बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसे बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया है। इसके मालिक से बात करते हैं कि उसका क्या कहना है। जी बहुत मेहनत की है यार, हमने बहुत मेहनत की, हम लग रहे नहीं है पैसे हाजी नहीं लगा रहे, 12-13 लाख लगा रहे हैं, मेहनत बहुत हुआ है, इसमें पैसे अच्छे नहीं लगा रहे हैं हाजी। जो व्यापारी है उसका यही कहना है कि जो हमारा दाम है, जो रेट रखा गया 20 लाख रुपए, वो यहाँ जो खरीदार है वो नहीं दे पा रहे और अब तक जिसका रेट लग रहा है वो 12-13 लाख तक लग चुका है, लेकिन हम फरोख्त नहीं कर रहे। इसका यही कहना है कि जब तक इसका जो मुनासिब दाम है 20 लाख रुपए वो नहीं मिलेंगे तो हम इसे फरोख्त नहीं करेंगे। जी